Good morning. Today we will discuss about product of two vectors. Product of two vectors. There are two types of product of two vectors. First is scalar product or dot product. Second is vector product or cross product. स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से हमें रियल नंबर मिलता है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से हमें वेक्टर मिलता है। अब नाउ वी टू डिस्कस फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी cos थीटा। Here theta is greater or equal to 0 and lesser or equal to pi. This is the vector A, this is vector B, and this is the angle between vector A and B, theta. Angle between two vectors A and B is cos theta equal to A dot B upon modulus A into modulus B. If vector is given in component form, suppose vector A equal to A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap. Vector B equal to B1 I cap plus B2 j cap plus B3 k cap. Then A dot B equal to A1 into B1, A1 into B1, I cap के कंपोनेंट का इंटू होगा, A2 into B2, J cap और J cap के कोफिशिएंट का इंटू होगा, A3 into B3, A3 into B3. So A dot B equal to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Modulus of vector A root A1 square plus A2 square plus A3 square. Now we have to discuss some examples. Example: find the angle between the vectors I cap minus 2j cap plus 3k cap and 3i cap minus 2j cap plus k cap. Cos theta equal to A dot B upon modulus A modulus B. This is our formula. Let vector A equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap. Vector B equal to 3i cap minus 2j cap plus k cap. A dot B 1 into 3 plus minus 2 into minus 2 plus 3 into 1. This is 3 plus 4 plus 3 equal to 10. Modulus A root within root 1 square plus minus 2 square plus 3 square. So this is 1 plus 4 plus 9 का root equal to root 14. Vector B equal to root के अंदर 3 square plus minus 2 square plus 1 square. So this is root 9 plus 4 plus 1 equal to root 14. Now we put these value in this formula. Cos theta equal to A dot B upon modulus A modulus B. So cos theta equal to 10 because A dot B equal to 10. Modulus A equal to 14 root 14. So this is root 14. Modulus B also equal to root 14. So this is root 14. So cos theta equal to 10 upon root 14 into root 14. This is 10 upon 14 equal to 5 upon 7 and theta equal to cos inverse 5 upon 7. So theta is cos inverse 5 upon 7. I cap is unit vector along x-axis. J cap unit vector along y-axis and k cap is unit vector along z-axis. Okay now, so I cap unit vector along x-axis, j cap unit vector along y-axis, k cap unit vector along z-axis. Unit vector means I cap dot I cap. I cap का मॉडुलस I cap का मॉडुलस x एक्सिस और x एक्सिस के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा. So this is 0. So cos 0. 1 into 1 into 1 equal to 1. यूनिट वेक्टर है तो I cap का मॉडुलस 1 होगा. J dot J cap का मॉडुलस into J cap का मॉडुलस. अब J और J के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा. So cos 0 की वैल्यू 1 होती है.
1 into 1 into 1 equal to 1. Okay. Similarly, k dot k cap is also 1. I dot j, I cap dot j cap. I cap का मॉड्यूलस, j cap का मॉड्यूलस. I cap is along x axis, j cap is along y axis. So I और j के बीच का एंगल कितना होगा? x axis और y axis के बीच का एंगल. x axis और y axis के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा. So this is cos 90. cos 90 0 होता है, तो 0 into 1 into 1 equal to 0. Similarly, j dot k cap equal to 0 and k cap dot I cap equal to 0. Now next, some new formula. Projection of vector A on vector B equal to A dot B upon modulus B. Projection of vector B on vector A, vector B dot vector A upon vector A का मॉड्यूलस. वेक्टर प्रोजेक्शन में वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ A डॉट ऑन B, A डॉट B अपॉन मॉड्यूलस B इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ B. यूनिट वेक्टर ऑफ B क्या होगा? वेक्टर B अपॉन मॉड्यूलस B. नाउ सम एग्जांपल. Find the projection of vector I cap minus j cap on the vector I cap plus j cap. I cap plus j cap. Let A equal to I cap minus j cap and B equal to I cap plus j cap. Formula. Projection of vector A on vector B equal to वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन वेक्टर B का मॉड्यूलस. A डॉट B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, I कैप माइनस j कैप डॉट I कैप प्लस j कैप. 1 into 1, yeah, coefficient of I cap is 1, coefficient of I cap is 1, so 1 into 1, yeah, coefficient of j cap minus 1, yeah, coefficient of j cap is 1. So minus 1 into 1, 1 minus 1 equal to 0. मॉड्यूलस B, I कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसको रूट के अंदर बंद कर लेंगे. So 1 plus 1 2, so root 2. Projection of vector A on vector B equal to A dot B upon modulus B equal to 0 upon root 2 equal to 0. Okay, understood? Dear student, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ फार्मूलों की ओर बढ़ते हैं. वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए के मॉड्यूलस का स्क्वायर. वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर फार्मूला है. वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर. नाउ एग्जांपल. फाइंड मॉड्यूलस x if for a unit vector a such that x minus a within bracket into x plus a within bracket equal to 12. Answer. X minus a vector x minus vector a within bracket dot vector x plus vector a within bracket equal to 12. वेक्टर x का वेक्टर x से डॉट हुआ, वेक्टर x डॉट वेक्टर x. वेक्टर x का वेक्टर a से डॉट हुआ प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर a का प्लस वेक्टर a से डॉट हुआ प्लस माइनस वेक्टर a का वेक्टर x से डॉट हुआ माइनस a वेक्टर डॉट x माइनस ए वेक्टर का प्लस ए वेक्टर के साथ डॉट हुआ माइनस ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 12. वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स इक्वल टू वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर. चीजों का तो सेम रहेगा. ए डॉट एक्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स को हम वेक्टर x डॉट वेक्टर
ए लिख सकते हैं। माइनस ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, दिस इज वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए का मॉडुलस इक्वल टू 1, वेक्टर एक्स के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 12। सो वेक्टर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, मॉडुलस एक्स इक्वल टू रूट 13। यहाँ पर माइनस 13 नहीं आएगा बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉन नेगेटिव, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नॉन नेगेटिव होता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विदिन ब्रैकेट डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी विदिन ब्रैकेट इक्वल टू 8 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 इंटू वेक्टर बी। आंसर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट ए, इसका इसके साथ डॉट करेंगे दिस वन, बी का इसके साथ डॉट करेंगे दिस वन, डी का माइनस बी से डॉट करेंगे दिस वन इक्वल टू 8। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ओके, बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, सो दिस इज ए डॉट बी डॉट बी माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, सो वेक्टर ए स्क्वायर बिकम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। वेक्टर ए का मॉडुलस, इट इज गिवन दैट in this example vector a का मॉडुलस इक्वल टू 8 into vector b, so we put the value of vector a का मॉडुलस 8 into vector b होल स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 8। दिस इज 64 वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 8। 63 मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, सो वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन 63 एंड वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू रूट 8 अपॉन 63। 8 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो इट इज 4 into 2, 63 का फैक्टराइजेशन करने पर 9 into 7, 4 का 2 बाहर आ जाएगा रूट से, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, सो दिस इज 2 root 2 upon 3 root 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए 8 into this value b, so 2 into root 2 upon 3 into 7, so this is 16 root 7 upon 3 root 7। so our answer is वेक्टर का मॉडुलस a equal to 16 root 2 upon 3 root 7 and वेक्टर b का मॉडुलस 2 root 2 into 3 root 7। if two vectors a and b, vector a and vector b are perpendicular, then their dot product is 0, vector a dot vector b equal to 0। example, if vector a equal to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap, vector b equal to I cap plus 2j cap plus k cap and vector c equal to 3i cap plus j cap are such that vector a plus lambda vector b is perpendicular to c, then find the value of lambda। answer vector a plus lambda vector b, this is vector a plus lambda within bracket हम vector b लिखेंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। आई कैप कॉमन ले लेंगे, तो आई कैप को कॉमन लिया 2 माइनस लैम्डा, इधर जे कैप कॉमन लेंगे
तो 2 प्लस 2 लैम्डा के कैप को कॉमन लेने पर 3 प्लस लैम्डा विदिन दैट. नाउ a plus lambda b is perpendicular to c. So a plus lambda b dot c equal to 0. 2 minus lambda I cap plus 2 plus 2 lambda, this is the value of a plus lambda भी यहाँ से दी गई है, and dot 3i plus j. I का कोफिशिएंट 2 minus lambda, so 2 minus lambda. Here I का कोफिशिएंट is 3, so 2 minus lambda into 3. 2 plus 2 lambda. J का कोफिशिएंट है, J का कोफिशिएंट is 1, so into 1. 3 plus lambda into 0. So this is 6 minus 3 lambda plus 2 plus 2 lambda equal to 0. 8 minus lambda equal to 0. Lambda equal to 8. Lambda equal to 8. This is our answer. Now next example. If the vertices ABC of a triangle ABC are 1, 2, 3, minus 1, 0, 0, 0, 1, 2 respectively, then find the angle ABC. Angle ABC means angle B को find out करना है. A वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3 है, तो OA बराबर हो जाएगा I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. B minus 1, 0, 0, so OB equal to minus I cap plus 0j cap plus 0k cap. OC 0, 1, 2, so vector OC equal to 0 into I cap j cap plus 2k. अब वेक्टर BC इक्वल टू होगा OC माइनस OB. BC वेक्टर होगा B 0 I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस विदिन ब्रैकेट माइनस I कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप. BC इक्वल टू वेक्टर BC इक्वल टू j कैप plus 2k cap plus I cap. So it is I cap plus j cap plus 2k cap. Now vector BA equal to OA vector minus OB vector. BA vector होगा position vector of A minus position vector of B. So it is I cap plus 2j cap plus 3k cap minus within bracket minus I cap plus 0j cap plus 0j cap. So this is I cap plus 2j cap plus 3k cap plus I cap. Vector DA equal to 2I cap plus 2j cap plus 3k cap. Now cos angle ABC equal to vector BC dot BA upon vector BC का मॉड्यूलस into vector BA का मॉड्यूलस. BC dot BA. So this is 1 into 2, 1 into 2, 1 into 2, so 1 into 2, 2 into 3, so 2 into 3. BC का मॉड्यूलस, this is BC, so 1 square plus 1 square plus 2 square का होल रूट. BA का मॉड्यूलस BA, this is 2 square plus 2 square plus 3 square whole root. So cos angle ABC equal to 10 upon root 6 into root 17. So this equal to 10 upon root 102. And our answer is angle ABC equal to cos inverse 10 upon root 102. This is our answer. Okay student, now we will start exercise 10.3. Problem number 1. Find the angle between two vector A and vector B with magnitude root 3 and 2. Respectively having A dot B equal to root 6 given.
गिवन में यहाँ पर आपको मॉडुलस ए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉडुलस। मॉडुलस वेक्टर ए √3 दिया हुआ है, मॉडुलस वेक्टर बी √2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और ए डॉट बी दिया हुआ है आपको √6। यूजिंग द फार्मूला cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस b, we put a डॉट b √6, मॉडुलस ए √3, मॉडुलस b 2। सो √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, √3 कैंसिल, दिस इज √2 अपॉन 2, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 1 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 1 अपॉन √2। cos में 45 पर cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 होती है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को हम एग्जांपल में डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 1। आंसर, लेट वेक्टर a इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप and vector b equal to 7i cap minus j cap plus 8. Projection of vector a on vector b equal to a dot b upon modulus v. We have to find a dot b. A dot b. In vector A, coefficient of I cap 1. In vector B, coefficient of I cap 7. So 1 into 7 plus. Here coefficient of j cap 3. And here coefficient of j cap is -1. So 1 into -1. Coefficient of k cap is 7. So 7, here coefficient of k cap is 8, so into it. This is 7 minus 3 plus 56 equal to, this is 60. Okay. Modulus b, वेक्टर b का मॉडुलस रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। This is 49 plus 1 plus 64. 50 plus 64 equal to √114. Put these values in this formula. Projection of vector A on vector B. This is A dot B. A dot B is 60 upon B का मॉडुलस 114. This is the answer. Now next question. Okay. Question number 5th. So that each of the given 3 vectors, this are unit vectors. Are unit vector. Also, they are mutually perpendicular to each other. Answer, let vector A equal to 1 upon 7 2i cap plus 3j cap plus 6k. Vector B equal to 1 upon 7 3i cap minus 6j cap plus 2k cap. Vector C equal to 1 upon 7 6i cap plus 2j cap minus 3k. वेक्टर ए को हम ब्रैकेट खोल लें. दिस इज 2 upon 7 i cap 3 upon 7 j cap plus 6 upon 7 k cap.
This is 3 upon 7 I cap minus 6 upon 7 j cap plus 2 upon 7 j cap. Vector C, this is 6 upon 7 I cap plus 2 upon 7 j cap minus 3 upon 7. ठीक है, हमने वेक्टर को रिमूव कर लिया। अब हमें प्रूव करना है कि तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो हम उनका मॉडुलस निकाल लेंगे। यदि मॉडुलस बनाता है तो प्रूव हो जाएगा कि तीनों के तीनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर। मॉडुलस है रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 अपॉन 7 स्क्वायर, j प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 अपॉन 7 स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 6 अपॉन 7 स्क्वायर। दिस इज 4 अपॉन 49 9 upon 49 plus 36 upon 49 equal to LCM लिया 49 आया, this is 4 plus 9 plus 36, so this is 49 upon 49 equal to root 1 equal to 1। hence प्रूव हो गया है कि वेक्टर ए कैसा है, यूनिट वेक्टर है। वेक्टर बी, वेक्टर बी का मॉडुलस निकाल लेंगे। दिस इज i का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 3 अपॉन 7 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट कितना है माइनस 6 अपॉन 7 प्लस माइनस 6 अपॉन 7 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट कितना है 2 अपॉन 7 प्लस 2 अपॉन 7 का स्क्वायर। सो दिस इज 9 अपॉन 49 प्लस 36 अपॉन 49 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव भी होगा प्लस 4 upon 49, this is LCM लिया 49 9 plus 36 plus 4, this is 49 upon 49 root 1 equal to 1। यूनिट वेक्टर प्रूव हो गया। वेक्टर सी का मॉडुलस निकाल लेंगे। i का कोफिशिएंट का स्क्वायर 6 अपॉन 7 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 अपॉन 7 का स्क्वायर, 36 अपॉन 49 4 अपॉन 49 प्लस 9 अपॉन 49, दिस इज आल्सो 49 अपॉन 49 का रूट 1 इक्वल टू 1। प्रूव हो गया कि यूनिट वेक्टर है। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, हम a डॉट b निकालें, 0 आता है तो a और b परपेंडिकुलर हो जाएगा। b डॉट c निकालें, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वे वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। a डॉट b, हम a डॉट b को फाइंड आउट कर रहे हैं। a में i का कोफिशिएंट 2 अपॉन 7, b में i का कोफिशिएंट 3 अपॉन 7 3 अपॉन 7 प्लस a में j का कोफिशिएंट 3 अपॉन 7, b में j का कोफिशिएंट माइनस 6 अपॉन 7 प्लस k का कोफिशिएंट कितना है 6 अपॉन 7, यहाँ k का कोफिशिएंट कितना है 2 अपॉन 7। दिस इज 6 upon 49, this is minus 18 upon 49 and this is 12 upon 49. So this is LCM 49, 6 minus 18 plus 12, this is 18 minus 18 upon 49 equal to 0 upon 49 equal to 0. Hence a vector a और vector b परपेंडिकुलर हो गए। नाउ b डॉट c करेंगे। यदि b डॉट c भी 0 आता है तो b और c भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसको करते हैं। i का कोफिशिएंट 3/7, इसमें i का कोफिशिएंट 6/7 प्लस j का कोफिशिएंट माइनस 6/7, इसमें j का कोफिशिएंट 2/7, इसमें k का कोफिशिएंट 2/7, इसमें k का कोफिशिएंट माइनस 3/7 इक्वल 18/49 माइनस 12/49 माइनस 6/49।
This is 49, 18 minus 12 minus 6, 18 minus 18 upon 49, 0 upon 49 equal to 0. This is also 0. ठीक ना? ओके, तो वेक्टर बी और सी कैसे हो गए? परपेंडिकुलर हो गए, क्योंकि बी डॉट सी कितना आया है? जी। अब हम सी डॉट ये निकाल लेंगे। सी डॉट सी 6 अपॉन 7 इंटू 2 अपॉन 7 प्लस 2 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस माइनस 3 अपॉन 7 इंटू 6 अपॉन 7। दिस इज 12 upon 49 plus 6 upon 49 minus 18 upon 49. So 49 LCM. This is 12 plus 6 minus 18. 18 minus 18 upon 49 equal to 0. Hence proved 0 perpendicular हो गए। पोस्ट कर दिया क्यों? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को एग्जाम्पल में समझाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका हमें वैल्यू निकालना है। ओके, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। इस 3a वेक्टर का हम 2a वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, तो 3 और 2 कितना होगा? कैसा लिखने? चलो हटाओ, 3a डॉट 2a। फिर इस 3a का 7b से करेंगे प्लस 3a वेक्टर डॉट 7b वेक्टर। अब माइनस 5b का इस 2a से करेंगे तो माइनस 5b डॉट 2a। इस माइनस 5b का 7b से करेंगे तो माइनस 5b डॉट 3 to the 6 a dot 7 3 the 21 a dot b 5 to the 10 b dot a and this is 35 b dot a dot a को हम वेक्टर a स्क्वायर लिख सकते हैं। 21 a डॉट b, b डॉट a को हम a डॉट b लिख सकते हैं। माइनस 35 वेक्टर b स्क्वायर। दिस इज 6 मॉडुलस a स्क्वायर प्लस 21 में से 10 जाएगा तो 11 a डॉट b माइनस 35 मॉडुलस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर। 2 वेक्टर्स a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं? सेम। वेक्टर a का मॉडुलस इक्वल टू वेक्टर b का मॉडुलस इक्वल टू हम k ले लें। क्या ले लें? k ले लें। एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b इक्वल टू 1/2। नाउ यूजिंग फार्मूला cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉडुलस a मॉडुलस b। सो cos 60 इक्वल टू a डॉट b इज गिवन 1/2 मॉडुलस a k मॉडुलस b k। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सो 1/2 अपॉन k स्क्वायर। 1/2 k स्क्वायर इक्वल टू 1/2 k स्क्वायर इक्वल टू 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल टू 1, सो k इक्वल टू 1। मॉडुलस a इक्वल टू 1 हो जाएगा, मॉडुलस
b इक्वल टू 1 हो जाएगा। वेक्टर का मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इस वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 को हम एग्जाम्पल्स में समझ चुके हैं। 11 नाउ, इसमें दो वेक्टर्स को हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है। जब कभी भी हमें दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना पड़ता है तो उन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स को हम जीरो के इक्वल प्रूव करते हैं। यदि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो जाता है तो वेक्टर्स आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका और इसका हमने डॉट, ओके। पहले वाले वेक्टर का इससे डॉट करेंगे तो ये आएगा, इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो ये आएगा, फिर इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो ये आएगा, इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर मॉडुलस है, स्केलर है और वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है। तो स्केलर को हम अलग कर लेंगे और वेक्टर को अलग एक साथ लिख लेंगे, ओके। तो ये लिख लिया गया इधर मॉडुलस भी स्केलर है, अलग लिख लिया। बी वेक्टर ए और वेक्टर बी डॉट ए हो गया। सिमिलरली इन दिस वे, ओके। नाउ वेक्टर ए का स्क्वायर, बी डॉट बी वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। माइनस वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस, बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, प्लस मॉडुलस बी मॉडुलस ए, दिस इज ए डॉट बी, माइनस मॉडुलस बी का स्क्वायर, ए डॉट ए मॉडुलस ए का स्क्वायर। से कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0। हेंस गिवन वेक्टर आर परपेंडिकुलर, given vectors are perpendicular. Now question number 12, if a dot a equal to 0 and a dot b equal to 0, हमें बताना है कि हम b के बारे में क्या कह सकते हैं यहाँ, ओके। a dot a equal to 0, मॉडुलस a स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे क्या इम्प्लाई होता है, मॉडुलस a इक्वल टू 0। वेक्टर ए का मॉडुलस 0 है, इससे पता चलता है कि ए वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर है। सो हेंस वेक्टर ए इज 0, वेक्टर ए कैसा है, 0 वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू 0। नाउ ए डॉट बी इक्वल टू 0, किसी भी वेक्टर का 0 वेक्टर से डॉट करने पर 0 ही आएगा। इससे इंप्लाई होता है B कैन बी एनी वेक्टर, B कैन बी एनी वेक्टर। दिस इज आवर आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ABC आर यूनिट वेक्टर्स। मॉडुलस A इक्वल टू 1, मॉडुलस B इक्वल टू 1, मॉडुलस C इक्वल टू 1, बिकॉज दीज आर यूनिट वेक्टर्स। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 0 वेक्टर दिया हुआ है। स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड, दिस इज A प्लस B प्लस C का स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर, okay. So this one a plus b plus c dot a plus b plus c equal to 0 vector, okay. And this one is written as वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट डी, ओके। दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2
ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस दिस वन प्लस वन प्लस वन ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस 3/2. This is our answer. Now next question number 14. Okay, this one is question number 14. If either a equal to 0, b equal to 0, vector 0, a dot b 0 है, होता है, होता ही होता है, a और b 0 हो तो a dot b 0 होता है. But conversely not to be true, justify your answer. Consider these vector. Vector a equal to 3i cap plus j cap plus 4k cap. Vector b equal to 4i cap plus 4j minus 4k cap. Okay, मॉडुलस है रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर. दिस इज 9 प्लस 1 प्लस 16. दिस इज रूट 26. मॉडुलस b इक्वल 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, this is 16 plus 16 plus 16. 16 कॉमन आ जाएगा तो 4 रूट 3 हो गया. दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0. ओके, इससे पता चलता है वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो वेक्टर्स नहीं है. अब ए डॉट बी निकालें हम. ए डॉट बी 3 into 4 प्लस 1 into 4 plus 4 into minus 4. This is 12 plus 4 minus 16. 16 minus 16 equal to 0. तो देखो a डॉट बी 0 आ गया, पर वेक्टर a और वेक्टर बी 0 नहीं है. Hence converse of this statement need not be true. ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोला है वेक्टर और वेक्टर भी 0 हो, दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो तो a डॉट भी 0 होता है. पर यदि a डॉट भी 0 हो तो क्या जरूरी है कि वेक्टर a या वेक्टर b में से कोई 0 हो? तो जरूरी नहीं है. दिस इज नॉट नीड टू बी ट्रू. ओके, अंडरस्टूड. इसमें आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी अपने आप इस तरह से लेना है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 आए. दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आने के बाद हमें इस तरह से उनका मॉड्यूलस दोनों का कैसा हो? नॉन जीरो हो, दोनों के मॉड्यूलस 0 नहीं आए.